हमारा साउथ इंडिया में कन्नड़ा में बोलते हैं शिवा शिवा मीन्स पता नहीं क्या होगा। हाँ, anyway, वो तो I met someone. This girl is from Bangalore. Uh, हाँ when she was Pune, there was some Bajaj program. So 2 days event I had gone for some program. So हाँ she was my roommate from Bangalore, and while going she met some ISKCON person who was sitting beside her only, ओह ओके and was saying that this person has asked me, and the next day was Ekadashi, the last Ekadashi which went, हाँ 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 was ओके saying that I will go. So I didn't ask her. I could not speak to her, but I will speak to her and I'll guide her to go to VCM now. ही इज फ्रॉम विच प्लेस वृंदावन No, she's from no, she belongs to Bangalore only. ओह Her daughter is working in US. Only one child she has working in US, and she's getting married in November. Son-in-law is also in US. It's a love marriage. North Indian getting married to a South Indian. अच्छा ओके And so her husband is working somewhere in the outskirts of Bangalore. So she stays in Bangalore. Her elder. to go to ISKCON Bangalore. ISKCON is very big in Bangalore. I told her that don't go to the person whom she met. He invited her that please come. We will do chanting and all that. Tomorrow is Ekadashi. All that he. So she was saying that I will go once. So she was. I told her that don't take tea and coffee. Drink hot water. So she saw me drinking hot water. So she said that I'm very inspired with you. I am also drinking hot water now. So I'm thinking that I will guide her to go to Akshay Patra now. Very good. So if Fine. You should be allow, example to others. Huh? sorry, yes. You should be example to others in that way. Very nice. Good to know. Really, very nice. So let's start our discussion. ठीक है. Yes. तो ऋचा जी आपने पढ़ा है क्या पूरा? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है प्रभु जी। एक तो ये बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पूरा दिन इन्हीं में लगे रहते हैं। बच्चों का ऑनलाइन क्लास अभी क्या चल रहा है? सर्दी, ठंड की वजह से, ड्यू टू कोल्ड वेव ऑनलाइन क्लासेस हो रखी हैं। एक तो पोल्यूशन होता है, उसके लिए ऑनलाइन होता है। अभी अब ठंड हो गया और गर्मी शुरू होता है, गर्मी में भी ऑनलाइन क्लास होता है, यानी कि पूरा साल में 50-60% ऑनलाइन ही होता है। सिर्फ हम फीस पे करते हैं स्कूल की और बच्चों को घर में बैठा देते हैं। थोड़ा बहुत नहीं होता, हैं? फीस भी थोड़ा बहुत नहीं होता है। 10th हाँ, जबरदस्त फीस देते हैं और घर में बिठाते हैं। ऐसे करते हैं वो तो, बस उनको उनको अपना फीस मिल गया ना, यही बात है। Anyway, चलिए, so let's begin our discussion with one second. ठीक है, तो अभी आज का जो सब्जेक्ट है, तो पहले तो हमें क्वेश्चन पूछना है आपको। हाँ, रेणुका जी, रेडी फॉर द क्वेश्चन? Krishna consciousness, Hindu cult or divine culture? वो तो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लीजिए। हाँ, ठीक है। तो भगवान किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड भगवान? Uh, uh, भगवान को डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड भगवान? Someone who has the opulences, uh, What opulences? How many opulences? like how Krishna has, Right. Why Krishna is called Bhagavan? I'm asking this question only. because uh, he's the ultimate reality and he is a personalist. That's the reason we can say.
Okay, but you told one word, no? Opulences. How many opulences he has? क्योंकि कृष्ण सर्व आकर्षक है और उनके पास सभी 6 जो उनके ओपुलेंसेस हैं वो हैं क्या सर, क्या है? अ, पूर्ण बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य। हम्म, ठीक है। नहीं नहीं, 6 ऐश्वर्य ना, 6 कौन से हैं? Wealth, strength. बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य। हम्म, Hmm. ठीक है। और नहीं, बल, यश और पूर्ण धन, हम्म ज्ञान, Dhan, सौंदर्य। fame, हम्म strength and fame. So English, wealth, strength, हम्म knowledge, beauty, fame, and renunciation. हम्म ऐश्वर्य से वो जो श्लोक है ना, याद करना है आपको। ये सब बार बार है ना, भूल नहीं जाते हैं। एक श्लोक है ना, प्रभुपाद बोलते हैं, विष्णु पुराण। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय, देखिए वो श्लोक है ना इधर। ज्ञान वैराग्यो श्वेषणाम भग इति गना। हम्म हाँ, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, इस श्लोक का फॉर्मूला है हमको। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सभी ऐश्वर्य समग्र तरीके से हैं। ऐश्वर्य मीन्स वेल्थ, संपत्ति। वीर्य यानी कि बल। हाँ, हाँ, समग्र वीर्य है, समग्र यश, यश यानी कि फेम। श्रिय, श्रिय यानी कि ब्यूटी, Hmm. सौंदर्य। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान यानी कि अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, है ना। वैराग्य, त्याग। ये 6 जो, इसको विभूति बोलते हैं, ऐश्वर्य बोलते हैं इसको, जो है ऑपुलेंस बोलते हैं, विभूति। ये 6 विभूति जो संपूर्ण है इस व्यक्ति में, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको बोलते हैं कि वो भगवान है। हम्म है ना। तो ये बात है। तो ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्रिय, ज्ञान, वैराग्य, ये these 6 opulences should be in full। ये तो, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो समझना है हमको। ये जो 6 ऐश्वर्य जो है ना, ये ये 6 ऑपुलेंस का जो भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये बार बार प्रभुपाद जी समझाते रहते हैं। वाई? बिकॉज ये जो 6 विभूति हैं, ऑपुलेंस हैं, हर व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा है। इस भौतिक संसार में कोई जो अमीर आदमी है वो सुंदर नहीं है, उसका बुद्धि नहीं है ना। कोई बुद्धिमान व्यक्ति है वो सुंदर नहीं है, उसका बल नहीं है, उसका ऐश्वर्य नहीं है। तो भौतिक संसार में हम ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जहाँ जिनका ये जो ऐश्वर्य, ये जो विभूति है, संपूर्ण नहीं है, आधा अधूरा है, थोड़ा पोर्शन में है, इट इज नॉट कंप्लीट, है ना। तो तो प्रभुपाद जी यही बात समझा रहे हैं। भगवान का जो उनका भगवान शब्द का परिभाषा प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन ऑफ गॉड क्या है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमको, है ना। तो हमें इस चैप्टर से यही पता चल रहा है कि भगवान 6 ऐश्वर्यों को संपूर्ण तरीके के जो विभूति है, उसका स्वामी है, कंप्लीट है, संपूर्ण है। हाँ, यानी कि अनलिमिटेड ऐश्वर्य, समझ रहे ना। अनलिमिटेड यानी कि उसका कोई लिमिट नहीं है, जितना उनका ऐश्वर्य है। अनलिमिटेड ऐश्वर्य, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, उनका स्ट्रेंथ भी इतना श्रेष्ठ है, बढ़िया है। अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है उनका। हाँ, सो इस तरीके से हर चीज जो देखेंगे, इज ऑल बियॉन्ड लिमिट्स। ठीक है। अभी ऋचा जी आप बताइए, भगवान के ज्ञान का विषय में क्या एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपा जी? भगवान के ज्ञान के विषय में उनका अपरिमित ज्ञान है ना उनका।
नहीं पता प्रभु जी। एक ही है ना, देख लीजिए, है सब कुछ है, प्रॉपर सब समझाया हमने। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, समझना है आपको। हम्म। हम्म। हम्म, मिला आपको, मिला रेणुका जी? मतलब ज्ञान का ये एग्जाम्पल देते हैं कि यदि एक बच्चा जानना चाहता है कि उसका पिता कौन है। वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। देखिए, है, ऑलरेडी है। भगवान, भगवान को सर्वाकर्षक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका ज्ञान इतना अपरिमित है, अनलिमिटेड है, उतना परफेक्ट नॉलेज है भगवान का। हम्म। क्या बोलते हैं? जैसे साधारण तरीके से कोई विज्ञानी है, कोई थिंकर है, जो कवि है, उसका बहुत लोग प्रशंसा करते हैं ना, वो बहुत ज्ञानी है वो। ओके। ठीक उसी प्रकार भगवान को भी प्रशंसा होता है। क्यों? हम्म, हम्म, हम्म। बोलिए रेणुका जी, आप बोलिए। रेणुका जी आपका म्यूट है, म्यूट। हाँ, आपका म्यूट है। तो प्रभु जी, जो गीता में, भगवत गीता में कृष्ण ने जो नॉलेज दिया है, जो ज्ञान दिया है धर्म पे, आत्मा पे, फिर आपके जो डिजायर्स है, कर्म हम्म। योग, निष्कर्म कर्मा, क्या इसके वजह से हम भगवान को कहते हैं कि वो ज्ञानी है? हाँ, वो भी है बेसिकली। गीता का ज्ञान इतना श्रेष्ठ है ना? तो उसका ज्ञान के साथ कोई तुलना नहीं है ना? पूरा संसार में जितने सारे लोग हैं, वो बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग हैं, सब लोग गीता का ज्ञान के बारे में प्रशंसा करते हैं ना, हाँ जी। है ना? देयर इज नो कंपैरिजन टू नॉलेज ऑफ कृष्णा, कृष्णा's नो दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कृष्णा इज गिविंग इन भगवत गीता, है ना? सो इट इज समथिंग वेरी, तो तो भगवान का ज्ञान है, वो जो इतना बढ़िया ज्ञान है, आप कभी भी, एवरी टाइम, एनी टाइम, वो हमेशा हमारा रिलेवेंट होता है वो, है ना? जो टाइमलेस, यानी कि कोई समय का पाबंदी नहीं है, किसी भी समय में, किसी भी हालत में उसको हम अप्लाई कर सकेंगे। भगवान का वही ज्ञान हम अलग अलग सिचुएशन, जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल के साथ भगवान ने जो ज्ञान बताया, वो हमारा हर लाइफ, हर मनुष्य का हर लाइफ में वो, वी कैन ऑलवेज अप्लाई दैट ना। ये बात है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ। बेसिकली भगवान को जो भगवत ज्ञान इतना परफेक्ट है, इतना श्रेष्ठ है, संसार के सभी लोग भगवत गीता का ज्ञान समझने का कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट विचार जी? हाँ, भगवत गीता ज्ञान इतना श्रेष्ठ है। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं गीता का हर शब्द में इतना सारा ज्ञान भगवान ने दिया है, एक एक शब्द भी समझेंगे हम, बहुत जो है भगवान का बारे में हम समझ लेंगे। क्योंकि भगवत गीता, इवन भगवत गीता नॉलेज इज सो ग्रेट, व्हाट अबाउट जो भागवत है, बाकी सब वेद का ज्ञान है, और कितना श्रेष्ठ है, ये बात है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज। So he is considered the reservoir of knowledge. हाँ, एग्जैक्टली, रिजर्वायर ऑफ नॉलेज। हाँ, ठीक है। पूरा भगवान, भगवान सब कुछ जानते हैं, गीता में बोलते हैं मुझे भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ पता है। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको तो, आपका जीवन में आगे क्या होगा आपको पता है क्या? पता नहीं, तो आप अज्ञानी हो। भगवान को ना केवल एक आदमी का, पूरा संसार का सभी जीवात्माओं का सभी ज्ञान उनको है। ये बात हमें समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ,
तो ये जो चैप्टर हमने जो देखा था, भगवान के जो डेफिनेशन का, गॉड्स डेफिनेशन, इसमें प्रभुपाद जी वही तो बताते हैं हमको भगवान का मीनिंग क्या है, भगवान का अर्थ क्या है। जिस तरीके से थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको, ताकि ठीक से समझ समझ लेंगे आप। ठीक है, चलिए अभी इस चैप्टर का थोड़ा देखेंगे, आज का चैप्टर का, कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिंदू कल्ट और डिवाइन कल्चर, है ना। तो ये प्रभुपाद जी शुरू करते हैं कि ये शब्द है हिंदू, हिंदू शब्द कहाँ से आया। वो ये कह रहे हैं इसमें कि हिंदू शब्द, हिंदू बोलकर कोई शब्द नहीं था। मुस्लिम्स सिंदूर नदी को जब नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे थे तो उन्होंने हिंदू बोल करके बुलाना शुरू कर दिया, और वो लोग जो सिंधु नदी के पास रहते थे उनको हिंदू बुलाने लग गए। तो उस तरीके से ये हिंदू नाम का जन्म हुआ। जबकि कृष्ण कॉन्शियसनेस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कोई धर्म नहीं आता है, कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ सकता है, क्योंकि कहीं भी गीता में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अच्छा, ऋचा जी चले गए। ठीक है, यानी कि हिंदू शब्द वेदों में नहीं है ना। तो हिंदू हिंदू शब्द शब्द, वेदों में नहीं। हिंदू शब्द वेदों में नहीं है ना। तो अ, तो इस तरीके से हमें समझना है कि ऋचा जी एडमिट, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ठीक से, क्योंकि सिंध एक नदी है जो मुस्लिम कंट्रीज है और इंडिया के बीच में, भारत के बीच में है, चलती है। तो उसको वहां के लोग सिंधु नहीं बोल सकते, इसको हिंद, एच एच, इसको एच बोलते हैं, इसलिए वो हिंदू हो गया। द रिवर कॉल्ड सिंधु बॉर्डरिंग द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया। मुस्लिम्स को सिंध बोलने के मुश्किल है, वो इसलिए वो हिंदू हिंदू बोलने लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, तो भारतीय संस्कृति को क्या बोलते हैं ऋचा जी। हम्म, भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार भारतीय संस्कृति को क्या बोलते हैं। हम्म, आवाज आ रही है। हाँ जी प्रभु जी, आ रही। भारतीय संस्कृति को, इंडियन कल्चर को गीता के अनुसार क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरा क्लियर है नेक्स्ट पैराग्राफ में। उसमें मतलब ये लिखा है कि वहां पे दो भागों में बांटा गया है। हम्म, मतलब आध्यात्मिक और सामाजिक भागों में बांटा गया है भारतीय संस्कृति को। उसको क्या बोलते हैं आध्यात्मिक और सामाजिक विभाजन को क्या बोलते हैं। अ, व- वर्णाश्रम धर्म। हाँ वर्ण आश्रम धर्म, वर्ण यानी कि सामाजिक विभाजन, आश्रम यानी कि आध्यात्मिक विभाजन। ठीक है, और वर्णाश्रम। ये विभाजन कैसे होता है, गीता में भगवान बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये चार वर्ण और चार आश्रम का जो विभाजन जो है, मैंने हर व्यक्ति के गुण कर्म के आधार पर किया है, भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा स्पष्ट है। हमारा जैसे लोग बोलते हैं हम हिंदू कल्चर, हम हिंदू कल्चर नहीं, प्रभुपा जी बोलते हैं हम हिंदू कल्चर नहीं है, हम सनातन संस्कृति के हैं हम। हमारा संस्कृति को बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म क्या है, चार सामाजिक विभाजन क्या है, बताइए। हाँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। हाँ, और चार आध्यात्मिक विभाजन क्या है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। हाँ, ठीक है। तो ये सभी चार वर्ण, चार आश्रम का उद्देश्य क्या है।
तो ध्येय क्या है, उद्देश्य? मतलब भगवान और या मतलब श्री कृष्ण के प्रति ज्ञान का विकास हो सके हम में। ज्ञान विकास होने के बाद क्या करेंगे आप? हम्म, ठीक है, अच्छी बात है, ज्ञान विकास होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भक्ति करेंगे। हाँ, भक्ति। हाँ, ज्ञान पता है आपको, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर के पास जाना है, बुद्धि आ गया, डॉक्टर के पास जाना है, पता है, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, डॉक्टर के पास जाना है, समझ रहे? तो भक्ति का, भगवान का प्रति ज्ञान विकास होगा। विकास होने का जो उसका परिणाम क्या होना है, भक्ति करना है, उस ज्ञान में भगवान का भक्ति करना है, समझ गए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। हाँ, हाँ, प्रभुपाद जी एक और बात बता रहे हैं, बताएंगे इधर। हाँ, एक दैवी वर्णाश्रम के बारे में बताएंगे। हाँ, तो रेणुका जी, क्या है दैवी वर्णाश्रम, क्या है? दैवी वर्णाश्रम क्या है? वर्णाश्रम हमने क्या समझा है? इट इज सोशल एंड स्पिरिचुअल डिवीजन, डिविजन, हाँ। सामाजिक और आध्यात्मिक विभाजन, पूरा इस संसार का। और प्रभुपाद जी एक और टर्म यूज कर, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दैवी वर्णाश्रम। दैवी वर्णाश्रम क्या है? चार, पहले तो उन्होंने बताया कि चार वर्णास क्या है, और फिर उसके बाद आपका वो नहीं है, दैवी वर्णाश्रम क्या है? देवी वर्णाश्रम। प्रभु जी, देवी वर्णाश्रम तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया उन्होंने। मेंशन है ना, देखिए 1 2 3 4 पैराग्राफ में देखिए। हाँ, इंडियन कल्चर, जो भगवत गीता, जो आपका वर्णाश्रम धर्म बताया है, वहीं पर ही उन्होंने कहा है कि चार वर्णास है। फिर नहीं, चारों वर्ण स्पिरिचुअल ऑर्डर बताया, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए ना। हाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ आपका सिलेबस के अंदर ही है, आपका ये चैप्टर के अंदर ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछता हूँ मैं। दैवी नहीं, वर्णाश्रम क्या है? हाँ, मिल गया, मिल गया। कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट ट्राइंग टू एस्टैब्लिश राइट, अच्छा, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश राइट सिस्टम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन विच इज known as Krishna consciousness और देवी वर्णाश्रम, तो डिवाइन कल्चर। व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब वो हुआ, जो सही ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में जो सही सिस्टम है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हम पढ़ रहे हैं, उसी को ही हम दैवीय वर्णाश्रम कहते हैं, जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे हम कृष्ण के ही ध्यान में रहें, कैसे हम चैंटिंग करके अपने जीवन को सुधारें, कैसे हम वो प्रोसेसेस फॉलो करें। तो वही सिस्टम इसके अंदर में, कल्चर, वही कल्चर को हम दैवीय वर्णाश्रम कहते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने नहीं दिया है, फिर भी ये समझ हमें समझना है तो ठीक से। देखिए, वर्णाश्रम में क्या है, सामाजिक विभाजन, सोशल डिवीजन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर जो वर्ण का अलग अलग कर्तव्य है ना। वैश्य क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, वो कृषि करते हैं, हाँ, व्यापार करते हैं, और वाणिज्य यानी कि कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा करते हैं वैश्य। और शूद्र सभी अलग जो अलग वर्णों का सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये वर्णाश्रम है। दैवी वर्णाश्रम यानी कि सेंटर कृष्णा है, और वो वही जो मैं सुबह पुजारी बन के ब्राह्मण सेवा करूंगा, ठीक है, और उसके बाद सुबह में मंदिर का मार्जन करूंगा, वो फ्रॉम वर्णाश्रम का पर्सपेक्टिव से वो शूद्र का काम है, क्लीनिंग करना, सफाई करना, मैं वो भी करूंगा। और उसके बाद मैं बाहर जाऊंगा, लोगों से डोनेशन मांगूंगा, वो वैश्य का काम है। यानी कि एक डिवोटी अलग अलग रोल प्ले करता है कृष्णा के लिए। वर्णाश्रम में क्या है, एक वर्ण का आदमी जो काम करता है वो ही करना चाहिए उसको,
वो बदल नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि वो वैश्य ब्राह्मण नहीं बन सकता है। तो प्रभु फिर वो क्या, हाउ इज दैवीय वर्णाश्रम डिफरेंट फ्रॉम द वर्णाश्रम? दैवी वर्णाश्रम is different in the sense that the same person will take up different roles for pleasing Krishna because it is transcendental. Daivi means transcendental, divine. Divine, okay, yes. It is divine only for Krishna. For Krishna, you take up the role of cleaning the temple or worshipping Krishna or going and doing some business for Krishna. It is all for Krishna. So earning money and material enjoyment is omitted from the Devi Varnashram. Earning money for Krishna is not omitted. Yes, so earning money just for fun and all those activities. Earning money even in Varnashram is not allowed. But there is some with regard to you can be with the family. Census is a anyway, it's a big subject matter. हम बाद में इसके बारे में समझ. At least you should know there is a term called दैवी वर्णाश्रम. समझ रहे हैं? ठीक है. नेक्स्ट आपके लिए ऋचा जी. तो वर्णाश्रम पद्धति का दुरुपयोग हुआ है भारत में, किस तरीके से हुआ है? वर्णाश्रम पद्धति का ऋचा जी आपके लिए वर्णाश्रम का दुरुपयोग किस तरीके से हुआ है? इसमें है प्रभु जी, पर मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। क्या ये है? नेक्स्ट आप बताएंगे रेणुका जी? बढ़िया, पढ़ना नहीं, मुझे बस समझाना है. तो यहाँ कैन यू रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन प्रभु जी? वर्णाश्रम धर्म का दुरुपयोग, हाउ द वर्णाश्रम हैज बीन मिसयूज्ड इन इंडिया. तो दुरुपयोग इस तरीके से हुआ है कि जैसे कोई एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो वो गोत्र और बाकी सारी चीजों से उसको हेरिडिटरी मान रहा है कि मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, लेकिन जबकि हमें गीता में ये कहा गया है कि आप अपने कर्म के अनुसार ब्राह्मण हो। आप गुण कर्म का रसा. आप ब्राह्मण परिवार में रहकर अगर आप शूद्र का काम कर रहे हो या वैश्य का काम कर रहे हो तो आप वही कहलाओगे। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अगर शूद्र परिवार में पैदा हो कि अगर वो ब्राह्मण का काम कर रहा है तो वो एक सही मायने में ब्राह्मण कहलाता है। तो अब तो ये मिस यूज इस तरीके से हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो उसके कर्म चाहे जैसे भी हो वो अपने आप को शुद्धिकरण देता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो उस तरीके से मिसयूज हुआ स्पष्टीकरण है। नहीं देता है, वो जस्टिफिकेशन देता है. जस्टिफिकेशन, सॉरी, स्पष्टीकरण देता है, स्पष्टीकरण देता है. स्पष्टीकरण देता है, मेरा सॉरी, हिंदी और बेटर है आपसे. हरि बोल. स्पष्टीकरण देता है, नॉट हाँ? शुद्धिकरण। हम तो हिंदी जानते नहीं, फिर भी हम हिंदी बोल देते हैं. स्पष्टीकरण देता है कि हाँ मैं स्पष्टीकरण देता है, शुद्धिकरण नहीं देता है. ठीक है. तो समथिंग इस एल्स। तरीके से दुरुपयोग हुआ है भारत में कि आदमी ब्राह्मण में एक परिवार में जन्म लिया, मैं ब्राह्मण हूं, जैसे आपके पिताजी डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर बन गया, ऐसे थोड़ी होता है. आपको डॉक्टरी पढ़ना है, आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, मेडिकल कॉलेज जाना है, उसको क्वालिफाई होना है. आपको आपको जो योग्यता होना है डॉक्टर का उसे सब प्राप्त करना है, उस तभी तो आप डॉक्टर बनेंगे. तो हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक क्वालिफिकेशन है, ये जाति नहीं है. तो वर्णाश्रम का जो डाउनफॉल हुआ इंडिया में, भारत में, वो जाति पद्धति के नाम पर हो गया है. आजकल इतने सारा जो हर एप्लीकेशन में हमें आपका जाति क्या है बताते हैं ना, जो पूछते हैं. यानी कि जाति से आप कुछ भी हो, परंतु आपको उसके पास वो क्वालिटी ही नहीं है. ब्राह्मण का लक्षण क्या है? वो एक अर्हता, योग्यता है, जो गीता में हमें उसका लक्षण बताते हैं. मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण, हाँ, और वेदाध्ययन करना, इस तरीके से ब्राह्मण का बहुत सारे लक्षण होते हैं. तो वो लक्षण के बारे में भगवान बताते हैं. तो वो लक्षण आपके पास है तो आप ब्राह्मण हैं. लक्षण ही नहीं है, बस खाली नाम के लिए, और जन्म हुआ मेरे पिताजी ब्राह्मण है तो मैं ब्राह्मण बन गया, ऐसा नहीं होता है ना. आपकी योग्यता प्राप्त करना है. तो वर्णाश्रम का दुरुपयोग ऐसे हो गया विशेषकर भारत में कलयुग में कि लोग जाति के, जन्म के अधिकार पे वो एक एक वर्ण में आ रहे हैं बोल के इस तरीके से उन्होंने अपना अपना हक जमा रहे थे. तो ये गलत है. तो ब्राह्मण प्रभु एक लड़का ब्राह्मण नहीं हो सकता है.
वो प्रभु जी, जो ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन उसको मिले, उसको जो प्राप्त होगा तभी वो ब्राह्मण होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने का ज्यादा सुविधा है, ज्यादा फैसिलिटी है, फिर भी उसे डॉक्टर बनने का पूरा जो स्टडीज पूरा करना है पड़ेगा उसको। डॉक्टर बनने का पूरा क्वालिफिकेशन होना है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट प्राप्त होना है, तभी वो डॉक्टर माना जाएगा ना। तो प्रभु जी, एक पंडित जो पुजारी है मंदिर में, लेट से उसका बेटा भी पुजारी बनता है, वही पढ़ाई कर लेता है, एंड ही क्वालिफाइज विद द वैदिक नो शास्त्र। प्रॉब्लम, if he studies and qualifies, no problem. ओके देन, बट देर आर मेनी सिचुएशन जहाँ पे ना वो फादर के साथ रह के थोड़ा बहुत सीख गया और पुजारी बन गया, लेकिन दूसरे सिनेरियो में एक शूद्र जो जन्मा है, वो अगर पंडित का पढ़ाई पढ़ाई कर लेता है, तो डू यू थिंक somebody will allow him to become पंडित इन Course, द मंदिर? that's how in ISKCON we are doing. ये चैतन्य महाप्रभु का सिस्टम है। ओके। हाँ। किब विप्र, किब शूद्र, किब न्यासी न्याय, से तत्व कृष्ण वेत्त, से गुरु हाय। ये बंगाली आप समझते होंगे। आप विप्र हो, आप यानी कि ब्राह्मण हो, आप सन्यासी हो, आप शूद्र हो, कोई चिंता नहीं है, आपको कृष्ण ज्ञान है तत्वतः, तो आप, हाँ, गुरु है। तो ये रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो चैतन्य महाप्रभु ने इंट्रोड्यूस कराया। आदमी, मनुष्य जो है जाति से नहीं बनता है, जन्म से कुछ वो उसका जाति नहीं होता है। सभी जीवात्मा वास्तव में भगवान का भक्त है, भगवान का नित्य दास है। अभी वो केवल एक उपाधि ले लिया उसने। हाँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, बोल के आपने एक उपाधि ले लिया। जैसे आप एक एक कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, और आप उस कंपनी के साथ अपना पहचान बना लिया आपने, जो यू आइडेंटिफाइड विद दैट कंपनी एंड यू से, ओ दिस इज माय कंपनी। ठीक है, हो सकता है, परंतु आप नेक्स्ट ईयर में गो टू सम अदर कंपनी और उसके साथ पहचान बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पोजीशंस बदलते रहते हैं, बट यू एज अ पर्सन, स्पिरिट, सोल, यू डोंट चेंज। तो हमारा वास्तव जो पहचान यही है कि भगवान का नित्य दास है। तो जब हम भगवान के बारे में किसी भी सिचुएशन में प्रचार करेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, तो वी आर एक्चुअली सिचुएटेड इन अ प्रॉपर वे। दैट इज द प्रॉपर यूज ऑफ वर्णाश्रम धर्म। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, जो हम क्वालिफिकेशन एक्वायर, जैसे हम इस्कॉन में क्या करते हैं, हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, जब वी आर गिवन अ ट्रेनिंग हाउ टू बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा, रिगार्डलेस ऑफ बर्थ और हेरिडिटी। हाँ, हमारा जन्म और हमारा जो पूर्वज के जो जो कार्य का उसको कोई मान्यता नहीं होता है। जो हम इस जीवन में जो हम अभ्यास करें, जैसे प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाकर हिप्पीज को बदल दिया। हिप्पीज जो कुछ उनका कल्चर ही नहीं है, उनको ब्राह्मण बनाया, उनको वैष्णव बनाया। देखिए, जो म्लेच्छ यावन थे, म्लेच्छ यानी कि जो मांस खाते हैं, यावन यानी कि जो वैदिक संस्कृति का अनुसरण नहीं करते हैं, जो म्लेच्छ यावन थे, उनको भी प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण वैष्णव बना दिया। यानी कि जन्म से कोई म्लेच्छ यावन नहीं है, उसका कार्यों से, कर्मों से वो बन जाता है। ये बात है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्णाश्रम का मिसयूज हुआ है। हम्म, और विशेषकर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शंकराचार्य जी का जो अनुयायी है ऐसे कर रहे हैं थोड़ा बहुत। शंकराचार्य जी के जो अनुयायी हैं, वो परम सत्य को निराकार मानते हैं अंत में। दे आर थिंकिंग परम सत्य एज निराकार। तो उनके बारे में प्रभुपाद जी ये सब बता रहे हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, आपके लिए ऋचा जी, शंकराचार्य जी ने मायावाद तत्व को क्यों जो इंट्रोड्यूस कराया, और मायावाद तत्व क्या है? क्यों इंट्रोड्यूस करवाया?
हाँ, क्यों इंट्रोड्यूस किया उन्होंने? मायावाद का क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए। मायावाद नास्तिकता है। और नहीं पता प्रभु जी मेरे को। लिखा है। Shall I say, जी? हाँ, प्लीज अटेम्प्ट। शंकराचार्य का एम था कि बुद्धा के सिस्टम को हटाना, क्योंकि बहुत ज्यादा बुद्धिज्म फैल गया था उस टाइम पर। और बुद्धिज्म का जो फिलॉसफी है वो लोग वैदिक फिलॉसफी में विश्वास नहीं करते। तो इस वजह से शंकराचार्य जी नहीं चाह रहे थे वो चीज हो। तो उन्होंने ये मायावाद वाली जो फिलॉसफी है उसको बढ़ाना शुरू किया ताकि बुद्धिज्म वाली फिलॉसफी हट सके। और मायावाद का ये कहना है कि वो लोग एथिस्ट होते हैं और वो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, मतलब निराकार है, कोई आकार नहीं है। और डेमी गॉड्स पर भी बिलीव नहीं करते, कृष्ण पर भी बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनका ये कहना है कि इम्पर्सनल है, कौन इम्पर्सनल है? भगवान इम्पर्सनल है, निराकार है, निर्विशेष है। हाँ। हाँ निराकार है। तो वो मायावाद की फिलॉसफी है। एंड दे डिनाई दी कृष्णा कॉन्शियसनेस। डेमी गॉड्स को भी डिनाई करते हैं कि नहीं, भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, डेमी गॉड्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। उनके लिए सब कुछ जीरो है, एवरीथिंग शून्य है, शून्य कौन, पर किसके है लिए? सब। किसके लिए? किसके सॉरी, लिए शून्य है? मायावाद, मायावाद के लिए। मायावाद के लिए नहीं है। तो सॉरी, मायावाद के लिए शून्य नहीं, मायावाद बुद्धवाद, इज बौद्धवाद, अल्टीमेट। see, सॉरी, बौद्धवाद में शून्यवाद बोलते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ। मायावाद में, मायावाद में निर्विशेषवाद। हाँ निर्विशेषवाद, यस यस यस। निर्विशेष, वैशिष्ट्य नहीं है, वैरायटी नहीं है। हाँ, सब निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, इसको बोलते हैं मायावाद। बौद्धवाद क्या है? अंत में सब कुछ शून्य, वॉइड, वॉइड फिलोसफी। तो वो कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इवन बुद्धिज्म वाला फिलॉसफी भी वो ओवर रूल कर रहे थे, इवन द वैदिक लिटरेचर ऑल्सो। मायावाद का अपना ही वो है कि सब कुछ निराकार है, किसी चीज का आकार ही नहीं है। हम्म। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें अच्छा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये मायावाद का जो बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पंचोपासना क्या है प्रभु जी? पंचो, दे आर टॉकिंग अबाउट न्यू सिस्टम कॉल्ड नेक्स्ट बताएंगे, पंचोपासना। स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी, विल टेल यू, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि बुद्ध फिलोसफी क्या है, बौद्ध फिलोसफी क्या है। हाँ, तो जब एक ऐसा समय आया, इतिहास में, कि लोग वेदों के आधार पर प्राणी का हत्या कर रहे थे, वायलेंस, हिंसा कर रहे थे। हाँ, और वेदों का, वेदों में बोलते हैं हम इसे बलि चढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वो प्राणी का वध कर रहे थे। तो भगवान को स्वयं आना पड़ा, एक विशेष रूप लेकर, इमरजेंसी हो गया था। जैसे इमरजेंसी में सरकार जो है कर्फ्यू लगाता है ना, सेक्शन 144। हम्म। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार भगवान का आना पड़ा, बोला, हाँ, वेद को मैं मानता नहीं हूं। क्यों? तो वेदों के आधार पर ये सब अनर्थ कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। तो बुद्धा केम एंड टोल्ड, अहिंसो परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, मुझे फॉलो करो बोल के बुद्ध ने बोला। बुद्ध तो भगवान विष्णु ही है। तो बुद्धा ने इमीडिएटली आके वेदा को तिरस्कार कर दिया, वेदा को तो जो है उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो वेदों के आधार पर लोग अधर्म कर रहे थे। इट वाज तो रिक्वायर्ड प्रभु जी, एज ए बुद्ध तो नेसेसरी खुद मेजर भी फॉर टाइम अशोका बीइंग। थे ना। हाँ, अगर आप ये कहते हैं तो बुद्ध तो खुद भी वो अशोक थे। ही वॉज द किंग अशोक, so he नो was नो also नो नो, killing, बुद्धा no? वाज नॉट अशोका। बुद्धा वाज पैट्रोनाइज्ड बाय अशोका। एक राजा अशोक था, महाराज अशोका। तो उस हाँ। टाइम में बुद्ध जब अवतरित हुए तो वो थे। तो बौद्ध धर्म को उन्होंने प्रचार करने में सहायता किया। अच्छा, ही इज नॉट कन्वर्टेड इनटू बुद्धा।
he also became Buddhist. He also became Buddhism उन्होंने भी अडॉप्ट किया। अशोक महाराज में बुद्धिज्म फॉलो किया, और न केवल अपने राज्य में, सभी पूरा संसार में प्रचार करने का उन्होंने सहायता But की। King Ashok is not Buddha, right? Oh no, King Ashok is not Buddha. Okay, so I was thinking all this while. Buddha is the name of one king by name Siddhartha. हाँ, ठीक है, वो Yes, Siddharth became Buddha. Yes, yes. Ashoka is a king who patronized Buddha। ठीक है, तो इस तरीके से वेद का मान्यता जो है निकल गया समाज से। तो भगवान का उद्देश्य तो ये नहीं था, वेदों का मान्यता हमेशा रहना है। तो वेद का मान्यता भारत से निकल गया, पूरा संसार में जो वेद का जो संस्कृति का मान्यता नहीं रहा। तो शंकराचार्य जी को भगवान ने भेजा। शंकराचार्य कौन है? भगवान शिव के अवतार। शंकराचार्य जी आए, उनका एक ही उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म का, जो जिस तरीके से बौद्ध धर्म और बौद्ध तत्व जो है, जहाँ पे वेद का मान्यता नहीं है, उसको भारत से भगाना। और उन्होंने एक नया जो पद्धति शुरू किया, उसका नाम है मायावाद तत्व। समझ रहे हैं? तो मायावाद तत्व इन वन सेंस इज अ कवर्ड बुद्धिज्म। वो बौद्ध तत्व ही है, बस अलग से प्रेजेंट किया हुआ है। मायावादा क्या है? मायावादा यानी कि वास्तव में भगवान जब आते हैं, वो भी माया के चक्कर में आ जाते हैं, भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं। वो तो गलत है। भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं? भगवान माया का स्वामी है, और जब भौतिक संसार में अवतार लेते हैं, माया के चक्कर में आते नहीं है, माया का प्रभाव में आते नहीं है। हम माया के चक्कर में, हम प्रकृति के 3 गुणों के अधीन में हैं। तो मायावादा के हिसाब से क्या है? अभी जो वास्तव में भगवान का स्वरूप नहीं है, निराकार है, निर्विशेष है, ठीक है, और भगवान का व्यक्तित्व नहीं है। ऐसे वास्तव में भगवान यानी कि परम सत्य, यानी कि निर्विशेष, निराकार, परब्रह्मन, और पूरा रोशनी। जैसे राधा स्वामी सत्संग बोलते हैं, सुना आपने उनका, राधा स्वामी का? हाँ, सुनिए कभी कभी, कभी एक बार सुनिए। वो निराकार, निर्विशेष, निर्विकार सब लोग बताते हैं, अव्यक्त। हाँ, वो भगवान का एक स्वरूप है, बस वो वास्तव स्वरूप नहीं है। तो मायावादी फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान का स्वरूप का जो है वो मानते नहीं है। वो बोलते हैं कि भगवान वास्तव में निराकार, निर्विशेष है। जब भौतिक शरीर संसार में आते हैं तो एक शरीर लेते हैं, भौतिक शरीर लेते हैं, वो गलत है। भगवान यहाँ पे आने पर भी उनका शरीर दिव्य रहता है। हाँ, दिव्य रहता है, ये बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान हमेशा दिव्यत्व का मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, वो एक्चुअली देवताओं को देवता का जो मान्यता जिस तरीके से हम करते हैं, वैष्णव ऐसा नहीं करते हैं वो लोग। हाँ, केवल सोचते हैं कि देवता से कुछ हमें फायदा चाहिए, उठा लो बस। हाँ, तो और बस उनका कोई मान्यता नहीं है, ऐसे वो बोलते हैं। और बोलते हैं कि हाँ, वास्तव में देवता भी एग्जिस्ट नहीं करते, उनका भी अस्तित्व नहीं है, भगवान का अस्तित्व नहीं है, वो सब निराकार, निर्विशेष, सब हमें उनमें लीन हो जाना है, ये उनका तत्व है। और मायावाद तत्व क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया शंकराचार्य जी ने? क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रभाव से भारत में वैदिक संस्कार, वैदिक जो है साहित्य का जो है उसका तिरस्कार हो गया था। तो मायावाद में क्या है? बौद्ध धर्म में दे डोंट एक्सेप्ट वेदास, वेदा को मानते नहीं है। मायावाद में वैदिक तत्वों का, वैदिक जो है साहित्य का मान्यता है, परंतु उसी वैदिक तत्व, वैदिक साहित्य का अलग ढंग से उसका व्याख्या होता है मायावाद में दे आर ट्विस्टेड द वैदिक अंडरस्टैंडिंग। पूरा वेदों में क्या है? अंत में भगवान कृष्ण एक व्यक्ति है, ये बताते हैं। कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम पर्सन। मायावाद क्या बोलते हैं? हाँ, वेदों में बोलते हैं एक भगवान है, उनका स्वरूप नहीं है।
जैसे वेदों में कुछ है ऐसे स्टेटमेंट्स, बट व्हेन वी से, जब बोलते हैं भगवान का स्वरूप नहीं है, वो भौतिक स्वरूप नहीं है, उनका दिव्य स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है। जैसे भगवान को निर्गुण बोलते हैं, उनका भौतिक गुण नहीं है, उनका आध्यात्मिक गुण है, ये बोलने का बात है। उनका निर्विशेष यानी कि वो वैशिष्टता हमारे जैसे भौतिक वैशिष्टता नहीं है, वो दिव्य वैशिष्टता है, ये बात है। ठीक है। तो मायावाद तत्व में क्या है, जो जो भौतिक चीजें हैं उनका स्वरूप है, और आध्यात्मिक बनते ही ऑपोजिट है, उसका स्वरूप नहीं है, उसका आकार नहीं है, वो निराकार है, निर्विशेष है, इस तरीके से बोलते हैं। तो बौद्ध तत्व का ही अलग वर्जन है वो, एडवांस वर्जन बेस्ड ऑन वेदास। ऐसा understand। ठीक है। हाँ? तो क्योंकि मन को हम निराकार ब्रह्मन में कैसे फोकस करेंगे, मुश्किल है ना। हम बोलेंगे आपका मन है ना हवा में फोकस करो, क्या फोकस करेंगे हवा में? हाँ, इस तरीके से तो ये संभव नहीं है। तो आप कुछ इस भौतिक संसार में कुछ देवताएं हैं, उनका स्वरूपों को इमेजिन करिए, कल्पना करिए। इसको बोलते हैं पंचोपासना। पंचोपासना यानी कि वो बोलते हैं इस भौतिक संसार में कुछ पावरफुल पर्सनालिटीज हैं, जैसे शिव, दुर्गा, गणेशा, सूर्य एंड विष्णु। उनके हिसाब से ये सभी भौतिक व्यक्तित्व हैं, और ये सभी भौतिक व्यक्तित्वों का हमें क्योंकि हम इम्पर्सनल ब्राह्मण यानी निराकार ब्राह्मण के बारे में सोच नहीं सकते हैं, इनके स्वरूपों का ध्यान करिए, बस हो गया आपका पंचोपासना। ये मायावादी सिस्टम है। मायावादी सिस्टम है ये। मायावादी में क्या है ना, वो सब चीजों को अपने हिसाब से, अपने तरीके का इंटरप्रिटेशन है, सब सब अपने तरीके का जो कमेंट्री से वो अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि जो एक्चुअल फैक्ट है, उसको समझते नहीं है, वो अलग ही ट्विस्ट दे देते हैं उसको। और उस तरीके से अल्टीमेटली वो क्या, उनको क्या एस्टेब्लिश करना है, हम अंत में निराकार, निर्विशेष, वो इज नॉट द फैक्ट। गीता में तो शुरुआत से भगवान बोलते हैं हम भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में हमारा एक व्यक्तित्व है, हम एक पर्सनालिटी है, और पर्सनालिटी बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा मोक्ष होने पर हमारा व्यक्तित्व हम खो बैठेंगे, नहीं, गलत है। हमारा मोक्ष होने के बावजूद हम हमारा व्यक्तित्व को बनाए रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो मायावादी तत्व के अनुसार वो देवता का मान्यता नहीं है उनको, देवता का अस्तित्व ही नहीं है, खाली इमेजिन करिए आप कोई फॉर्म को। तो उनके हिसाब से ये देवी देवताएं सब हमारा काल्पनिक, इसीलिए ये जो माइथोलॉजी शब्द आता है ना आजकल के समय में, जो हमारे एजुकेटेड इंडियन सोसाइटी यूज कर रहा है, हाँ, yes, they are using a lot इसकी वजह से हुआ है, ये मायावादी की वजह से हुआ है। ये मायावादी लोग सब बोलते हैं माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मीन्स इमेजिनेशन, फिक्शन। हाँ, they are telling that Mahabharata is a फिक्शन mythology. कैसे फिक्शन है? हम बोलते हैं वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री, इतिहास और माइथोलॉजी में बहुत फर्क है, अंतर है। माइथोलॉजी यानी कि काल्पनिक। हम बोल सकते हैं कि आपका जो एलिस इन वंडरलैंड है, दैट एलिस इन वंडरलैंड इज माइथोलॉजी। Yes. हैरी पॉटर है, वो माइथोलॉजी है। तो जितने भी भगवान से रिलेटेड है सभी माइथोलॉजी में ही बोलते हैं सब। वो गलत है ना वो। हाँ। माइथोलॉजी यानी कि काल्पनिक, आपके केवल किसी ने कल्पना कर लिया है, प्रभु, आई गलत विल है। टेल यू, जो आपके बंगाल में जो सीपीएम को फॉलो करते हैं ना, मार्क्सिस्ट कम्युनिटी, उसको तो हाँ, वो तो हंसी उड़ाते हैं। इनफैक्ट आई रिमेम्बर 11 12 में अभी आई हैड अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, तो व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट महाभारत एंड ऑल दिस, शी वाज सेइंग कि दे ऑल mythology, and you know that mythology is imagination. So she was only making fun of her own Vedic this thing. क्योंकि इस तरीके का जो एक एजुकेशन सिस्टम ऐसे हो गया है ना, ब्रिटिश ने हमारा ब्रेन वॉश किया है, हमारा कल्चर का अपमान किया है, और अपमान करने को हमें सिखाया गया है। हाँ, सिखाया गया, हाँ, एग्जैक्टली। सिखाया गया है, और वी आर टोल्ड टू डिसरेस्पेक्ट आवर ओन कल्चर। वी आर ट्रेन्ड और एजुकेटेड। हाँ, सभी वेस्टर्न जो है वो सब ठीक है,
हमारा कल्चर सब कुछ बेकार है। So why not Jesus is also a part of mythology. Then what? Everything is mythology for you. And everything is mythology. They should Or say for that. them, their religion is all real. Hinduism is mythology. See, unfortunate क्या हो गया अभी, बड़े बड़े जो शिक्षित हिंदू हैं, सनातनी है, वो भी ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनको टैक्स से ज्ञान नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी का यही उद्देश्य था कि हमें ये जो मैथोलॉजी जो बोलते हैं, इनको थोड़ा ठीक से समझाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी का ये उद्देश्य था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवत गीता में स्पष्ट भगवान बताते हैं कि ये मैथोलॉजी नहीं है, इसका एक बेसिस है। और विशेषकर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवत गीता में देवता के बारे में बहुत सारा जो है ज्ञान भगवान देते हैं। देवता पूजा कौन करता है, 7th चैप्टर में भगवान बताते हैं। देवता पूजा वही करते हैं जिसको बहुत सारे मेटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं हैं, उसे पूरा करने के लिए देवता पूजा करते हैं। और देवता पूजा करने का जो जो फल मिलता है वो टेम्पोररी है। और जो जिसका बुद्धि अल्प है वही करेंगे देवता पूजा। और जो देवता का पूजा करते हैं देवता के पास जाएगा, और भगवान के पूजा करेगा कृष्ण का तो कृष्ण के पास जाएगा। तो इस तरीके से भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि आपको परमानेंट एग्जिस्टेंस चाहिए, शाश्वत अस्तित्व चाहिए, सनातन अस्तित्व चाहिए, तो आप भगवान कृष्ण का आराधना करो। आपको टेम्पोररी कुछ चाहिए तो देवता की पूजा करो। बस ये बात भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में। प्रभुपाद जी वही बात यहाँ पे समझा रहे हैं हमको, किस तरीके से हमें ध्यान रखना है। प्रभु जी, जो डेमीगॉड गणपति है वो तो प्रथम पूजनीय है। सो विथ फॉर एवरी पूजा वी हैव टू फर्स्ट वर्शिप हिम। ओके, सो दैट इज ओके, राइट? इफ वी आर डूइंग दैट। इफ यू आर वर्शिपिंग देवता विद द मूड ऑफ सर्विंग कृष्णा, फाइन। ओके। देवता देवता इंडिपेंडेंट नहीं है। देवतास आर ऑर्डर कैरियर्स ऑफ कृष्णा। ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में बोलते हैं, गणेश जो है अपने तुमली जो है अपना टस्क है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दंत दंत सूंड सूंड सूंड। नहीं, सूंड नहीं नहीं, है, दंत। सूंड नहीं। दंत अच्छा, दंत दंत जो है ना, दंत दंत। एक हाँ। दंत बोलते हैं। दंत दंत में भगवान नरसिंह देव का पाद पद्मों को जो है उसका आराधना कर रहे हैं, और प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को कि भगवान मुझे शक्ति दीजिए, क्योंकि गणेश जो है गणनायक, इस जनसामान्य का देखभाल करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का, भगवान नरसिंह देव का पाद पद्मों को आराधना कर रहे हैं। तो हम गणेश का पूजन भगवत भक्त के रूप में करेंगे तो अच्छी बात है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हर देवता का भगवान के साथ कुछ संबंध है ना। हाँ, दुर्गा को भगवान के जो है उनके बहन के रूप से हम तो उनका फिर वो पूजा करते मामा हैं। हो गए ना। हाँ, गणेश जी तो के तो गणेश के मामा हो देखिए, गए। हर देवता का पूजा हमें करना है, इस तरीके से करना है कि वो उनसे हमें प्रार्थना करने की, जिस तरीके से आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी भक्ति में आगे बढ़ने का कृपा करिए, अच्छा, गॉट इट। ऐसे हमारा प्रार्थना होना है। ठीक है, तो ऐसे प्रार्थना करेंगे तो ठीक है, नहीं तो केवल जो है हमें हमें बस वो करना ये करना वो करेंगे तो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, प्रभुपाद जी हमें हाँ अलग अलग तरीके के थियरीज, एथिस्टिक एंड डेमोनियक थियरीज के बारे में बताते हैं। हाँ, तो एथिस्टिक एंड डेमोनियक यानी कि नास्तिक और आसुरी तरीके का जो तत्व होते हैं वो क्या है? वो बोलते हैं कि नास्तिक बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान मर गए हैं। जैसे प्रभुपाद जी हमें चारवाक मुनि का एक नास्तिक थे, उनके बारे में बताते हैं। तो चारवाक मुनि क्या है, वो क्या बोलते हैं? कि अभी तुम्हारा जो अभी जन्म अभी जीवन चल रहा है, चलता रहेगा, जब आप मर जाओगे सभी सब कुछ भस्म हो जाएगा। हाँ, भस्म हो जाएगा, जीवन खत्म हो गया, बस हो गया। हाँ, बस वेदों में क्या बोलते हैं? नहीं, आपका शरीर खत्म हो गया, आपका आत्मा खत्म नहीं हुआ है, आपका आत्मा सनातन है, आपका एक और जीवन मिलने वाला है आपको। तो इस तरीके से नास्तिकवाद, हाँ, और कुछ लोग हैं, हाँ ऐसे सब कुछ अपने आप चल रहा है, चांस में चल रहा है ना, थियरी ऑफ चांस। उसको नोबेल प्राइज मिल गया एक साइंटिस्ट को, इनका नाम है जैकब मोनार्ड।
उनको नोबेल प्राइज मिल गया उनको। और कुछ और फिलोसफी है, तत्व है, जैसे कर्म मीमांसा। वो बोलते हैं, लोग बोलते हैं आप अच्छा काम करो, प्रामाणिक रहो, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट मिल जाएगा, ऑटोमेटिक आपको परिणाम अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना, अच्छा पढ़ाई करो, सब ठीक करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो भगवान की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे नास्तिक और आसुरिक तरीके के जो तत्वों का प्रतिपादन हो रहा है। तो परंतु वास्तव में क्या है कि वास्तव में सभी जो गतिविधियां जो चल रहे हैं भगवान के निर्देशन पर चल रहे हैं, है ना। ये बात हमें समझना है। तो प्रभुपाद जी वही बात समझा रहे हैं कि ये जो अलग अलग तरीके के जो तत्व और विचारों को जो नास्तिक और आसुरिक लोग जो प्रस्तुत करते हैं, उसमें केवल वो जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं बस, है ना। तो इस तरीके से कोई फायदा नहीं है हमको, आध्यात्मिक कोई हमारा प्रगति नहीं होगा। हाँ, तो इस तरीके से हम वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं किस तरीके से वैदिक संस्कृति में यहाँ तक कि एक एक बच्चे का जन्म कैसे होना है, किस तरीके से हमें हमारा मैथुन सुख का यूज करना है, सेक्स लाइफ को यूज करना है, बताते हैं। हमें एक साधारण प्राणी जैसा जो है हमें जीवन नहीं बिताना है। हमें बहुत व्यवस्थित तरीके से जो भगवान का जो सिस्टम है उसके अनुसार चलना है। और हमें विशेषकर मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है, उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। भगवान बताते हैं। तो प्रभु जी, व्हेन आई वाज टेलिंग समवन अबाउट दिस, जैसे आप बताते हैं ना वो चार चीजें, तो वो उस व्यक्ति ने मेरे को बोला कि गीता में ये नहीं लिखा है। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन गीता में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है आपने कि पढ़ा आप। नहीं तो आप क्या करें। तो मैंने उनको बोलना है आप गीता पढ़े हैं क्या, ठीक से उनको बोलना है। नहीं, जबकि वो कह रहे हैं हम गीता पढ़े हैं कि ये पढ़े रूल तो वहां पे दिखाइए, नहीं लिखा है। पढ़े तो दिखाइए, आप कहाँ कहाँ नहीं है बताइए, मैं दिखाऊंगा बोल के बोलना है। हाँ, लोग है ना अपने हिसाब से जो उनको चाहिए वो बोलते हैं कि वो नहीं है, ये नहीं है, वो है, ये है। तो तो गलत हम है। कौन से चैप्टर में ये लिखा हुआ है प्रभु जी, बोलिए, आई कैन टेल दैट पर्सन। हाँ, कौन से यू चैप्टर? यू टेल दैट पर्सन टू स्पीक टू मी। क्योंकि बाद में आप फंस जाएंगे फिर से। कौन से चैप्टर में, वो एक और क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आपके पास आंसर नहीं होगा। है ना। हाँ, पूरा जो पाप कार्यों को उसका समरी क्या है पता है? These four sinful activities: no meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex. स्त्रियो शून द्यूतपान, ये भागवत का श्लोका है। ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से भगवान ने समझाया है। उसको मेरे से बात करने बोलिए, मैं समझा दूंगा, श्लोका निकल के दूंगा। क्योंकि आप कह ना एक, आप ये बोल देंगे, अब एक क्वेश्चन में बोल देंगे एक श्लोक आता, वो दूसरा एक और क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर नहीं दे पाएंगे। हाँ। है ना, इसलिए चलिए। तो तो भगवान यहाँ पे हमें समझा रहे हैं कि किस तरीके से केवल जन्म से जो है वो मैं इस जाति का हूँ, उस जाति का हूँ, ये गलत है। हमें अपने योग्यता के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म यही इसी के आधार पर है, गुण कर्म विभागशः। तो इसके आधार पर हमें अपना जो है कर्तव्य निभाना है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी अंतिम में बताते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि कृष्णा भावनामृत जो है वो आध्यात्मिक एक संस्कृति है। क्योंकि अंत में जो है हमें भगवान के बारे में समझना है, भगवान का ज्ञान हमें प्राप्त होना है। तो यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना है। तो हम हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, उससे कोई हमारा मतलब नहीं है। कोई भी आप धर्म का आचरण कर रहे हो, हमें भगवान भगवान का प्रेमी बनना है, भगवान का दास बनना है, भगवान का भक्त बनना है, बस। तो कृष्ण भावनामृत के माध्यम से हम आध्यात्मिक संस्कृति का जो एक एक जो है शुरुआत हम करेंगे लोगों के जीवन में, जो उनके जीवन का सभी तरीके की जो समस्याओं का समाधान उन्हें मिल जाएगा। और इसे पूरा संसार में इसे स्वीकार कर रहे हैं, इसके बारे में ये बात है। ठीक है। तो
एनीवे आई गॉन लिटिल फास्टर इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। आप पढ़िए उसको, शुरुआत में धीरे धीरे समझा हुआ है, इस तरीके से हमने समझाया शुरुआत में, इसी को बाद में जो चीज़ें हैं उसको समझेंगे। मुश्किल नहीं है, ईजी है, आसान है। ठीक है, तो इससे हम 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिया हमने। हाँ, फिर से पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जैसे हमने भगवान के बारे में आज पढ़ा, फिर से वो चैप्टर पढ़िए और समझिए। हाँ, ऐश्वर्य, सभी संपत्ति के बारे में कृष्ण को भगवान बोलते हैं। कैसे संपत्ति, क्या है उनके पास, क्या संपत्ति है, हाँ, क्या उनका वैराग्य क्या है, हाँ, उनका वीर यानी कि उनका बल शक्ति क्या है, उनका ज्ञान शक्ति क्या है, इस तरीके से समझना है। राधा रानी। हाँ, ठीक है, तो चलिए, तो विल क्लोज हियर एंड कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन। आई हैव सम अदर मीटिंग्स लाइंड अप। ठीक है, चलिए, फाइन, थैंक यू, ठीक हरे कृष्णा। हरे रिकॉर्डिंग आई टेल है। राहुल टू सेंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, Yeah. चलिए, हरि बोल, हरे So कृष्णा। you don't have the recording of any of the session. आई टेल हिम टू सेंड एवरीथिंग। ठीक है, हरे Okay, okay, Prabhu.